ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣରେ ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ୍କୁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ଟି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସାର୍ଥକ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ବିନା ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ ଏବଂ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସଫଳ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରର ଅଭାବରେ ସଫଳ ଏବଂ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମର ସଫଳତା ଏବଂ ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଆମ ଭିତରୁ କେହି ବି ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ। ଆମର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଛେ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛେ, ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଆବେଗ ଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଆବେଗ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜଣେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ସବୁ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଶିଶୁର ବିକାଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆମେ ଯିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିଖିବାର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗତ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି, ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଉଛି, ଏହାର କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ଆଚରଣବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, କଗ୍ନିଟିଭିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଏବଂ ନିର୍ମାଣବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣର ଧାରଣା ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଚରଣବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜ୍ଞାନବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିର୍ମାଣବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇ ତିନୋଟି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆଚରଣବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 1960 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1950 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ 1900 ରୁ 1950 ମସିହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚରଣବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ତେଣୁ ଆଚରଣବାଦୀ ମାନେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରି ସେହି ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ହୋଇପାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ମାପଚୁପ। ଆମେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କହିପାରିବା, ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷଣକୁ କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଥିଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାରବାଦୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଏହି ଆଚରଣବାଦୀ
ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେମାନେ ଆଚରଣବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସେହି ଦିଗ ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଅଭିହିତ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନବାଦୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ସଂରଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ବୃହତ୍ ଏକକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବକ୍ତୃତା କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର୍କିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାନ କରାଯାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସହଜରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶିକ୍ଷାବିତ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ନିର୍ମାଣବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା 1980 ଦଶକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣବାଦୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନବାଦୀ ମାନେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ସେତିକି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ଞାନର ଏକୀକରଣର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ଥାଏ ଯାହାର କିଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇଥାଉ ବା ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିବେଶରୁ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା କେମିକାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ ସ୍ରୋତ ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସୂଚନାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ମୃତିକୁ ପଠାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ନୂତନ ସୂଚନା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମୃତିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ। ଫଳରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତାର ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ସହାୟତାରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନେଚର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏପରିକି ଅଭ୍ୟାସ ଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ଏପରିକି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏସବୁର ଏକୀକରଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ସହିତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆକ୍ଟିଭ କହିବା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ୟାସିଭ୍ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବ ଏହା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ନିଜକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭ ଆମର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ବା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ତେବେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ନାହିଁ ବା ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବା ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ କୌଣସି ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିଥାଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଉ। କାରଣ ସକ୍ରିୟ ନ ରହିଲେ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିପାରିବାନି, କିଛି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣର ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଥାଉ, କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ
मूल्यायन इत्यादि विभिन्न कार्य करा जाय थाए। तेणु ये सूचना प्रक्रिया माध्यम आम सूचना को विश्लेषण करूँ, सूचना को संश्लेषण करूँ और सूचनार मूल्यायन करूँ। जाफल यही प्रक्रिया जदि आम पाखे ना तेज आम शिक्षा ग्रहण संभव हो पार ना। तेणु ये प्रक्रिया अभाव में पाठपढ़ा संभव हो पार ना। तेणु ये हूँ सूचना प्रदान एक माध्यम। तेणु अभिज्ञता कौन मूल्यवान कार्य संपादन तार तीव्र इच्छा विफलता और सफलता द्वारा शिक्षा आरंभ हो पाए। तेणु शिक्षा आरंभ पूर्व आमको अभिज्ञता को देखा पड़ो और तार कार्य संपादन तीव्र इच्छा तार निर्दिष्ट भाव में शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण पर इच्छा अच्छी ना नहीं, तार विफलता और सफलता ये प्रत्येक दिग को आमको दृष्टि देवाक पड़ो शिक्षा ग्रहण समय। तापर शिक्षण फल आम नूतन ज्ञान निर्माण हो पारे कि पूर्व जहाँ शिखी से वृद्धि पाइबार संभावना अच्छी। तेणु शिक्षण आम जो नुआ जिन शिक्षा लाभ करुचे से ज्ञान निर्माण हो जहाँ आम कहूँ नॉलेज कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो से नॉलेज कंस्ट्रक्शन में कौन हो ना आम पाखे जो ज्ञान थिला से ज्ञान को लेकिन आम नुआ ज्ञान शिखुचे नुआ ज्ञान तैयारी करुचे आ द्वारा कौन हो आम ज्ञान वृद्धि हो ज्ञान वृद्धि संभवपर हो पारे। तेणु पाठपढ़ा योजना योजनाबद्ध भाव में कि अणयोजनाबद्ध हो पारे। आम अनेक समय कह पाठपढ़ा आम जो शैक्षिक कार्यक्रम योजनाबद्ध भाव में हो पारे कि अणयोजनाबद्ध भाव में हो पारे। तेणु परवर्ती पर्यायर आम कह शिक्षा लाभर फलाफल किसी इच्छाकृत कि अवांछित हो पारे। तेणु शिक्षा लाभ कर सारापर आम जो फलाफल विषय चिंता करुचे से फलाफल किसी आम इच्छाकृत हो पारे एवं किसी अवांछित हो पारे। तेणु जदि फलाफल अवांछित है से आमको विब्रत होगा पड़ो ना, कारण परवर्ती पर्यायर आम पूरा शिक्षा दे पार। तेणु पाठपढ़ा जीवन सारा चलो यह जन्म समय आरंभ हो मृत्यु पर्यंत रही है, जहाँ को आम जाचे जे लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पाठपढ़ा सारा जीवन चलो जन्म आरंभ हो सारा जीवन अविराम गति चलो एवं जीवन शेष पर्याय पर्यंत जो आम जीवन अंतिम सोपान आसो से आम शिक्षा परिसमाप्ति। तेणु जन्म आरंभ हो मृत्यु पर्यंत यह एक निरविच्छिन्न भाव में चलो। साधारणतः पूर्व काल जमी अनेक समय चिंता करमती पाठपढ़ा शोभार विषय नुहे, यह नितांत आवश्यकतार विषय। पूर्व काल आम जो शिक्षा दौले छात्र छात्री शिक्षा ग्रहण करते से केवल ज्ञान अर्जन पर शिक्षा ग्रहण करते, निजर ज्ञान पराकाष्ठा को अभिवृद्धि करने शिक्षा ग्रहण करते शिक्षा एक शोभावर्धक विषय थिला। किंतु वर्तमान यार आवश्यकता अच्छी शिशुर सर्वांगीन विकास में शिक्षा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। या द्वारा शिशु स्वावलंबी होगा सह देश एवं जाति रे विभिन्न कार्यक्रम एक निर्णायक भूमिका ग्रहण करता है। तेणु परवर्ती पर्यायर आम आलोचना करवा जे हाउ टू चिल्ड्रेन लर्न एंड देयर लर्निंग स्टाइल। पिला माने किपरि शिक्षा ग्रहण करती एवं ताकर शिक्षण शैली सब कौन। आम जानू जे शिक्षण द्वारा शिक्षार्थी आचरण में परिवर्तन सामूहिक भाव स्थायी होता है। आम कहूँ जे शिक्षण द्वारा विद्यार्थी आचरण में स्थायी और स्थाणु परिवर्तन होता है, जहाँ आम कहूँ जे मोर और लेस परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। यह हूँ पूर्व अपेक्षा भिन्न होबार एक प्रक्रिया। तेणु जो परिवर्तन हो वर्तमान प्रक्रिया ठारू आउ किछि भिन्न हो अलग हो। तेणु ये जो परिवर्तन ए परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन बोले आम ताको विवेचना करथाउ। आम सब किछि ना किछि शिखि थाउ अहर आम किछि नुआ नुआ कथा शिक्षा लाभ करथाउ शिक्षा माध्यम। तेणु पिला माने जो विभिन्न उपाय शिक्षा लाभ करती ता जानिबा यथेष्ट लाभदायक। तेणु आम बर्तमान जो कहूचे जे शिक्षा ग्रहण करती जे शिशुटे प्रति समय से किसी किसी शिक्षा लाभ करे, से तार परिवार सदस्य मान शिक्षा लाभ करे, परिवार शिक्षा लाभ करे, सांगसाथी मान शिक्षा लाभ करे, समाज व गोष्ठी शिक्षा लाभ करे एवं प्रत्येक व्यक्ति से किसी नुआ ज्ञान व नुआ तथ्य ग्रहण करें। तेणु ये समस्त शिक्षा तापाई लाभदायक होता है। तेणु शिशु ये जो शिक्षादान प्रक्रिया व शिक्षादान पद्धति किभली भाव में संगठित होता है से किभली शिक्षा लाभ करें से सब को आम बर्तमान आलोचना करवा। जे सर्वप्रथमे से अनुकरण माध्यम शिक्षा लाभ करें
अनुकरण माध्यम शिक्षण लर्निंग थ्रो इमिटेशन साधारणतः पिलाମାନଙ୍କୁ शिक्षा देवाई अनुकरण कर अनेक उपाय गोटे आम जिते गुड़े उपाय आम अवलम्बन करूँ शिशु को शिक्षा देवाई से अनुकरण हूँ गोटे सब बड़ उपादान गोटे बड़ उपाय एमाने साधारणतः निज बापा माँ को अनुकरण करते छोट शिशुटे जन्म हो सारापर से तार पेरेन्ट्स मानक अभिभावक मानक बापा माँ उभय को से अनुकरण करें छोट झील मैंने माँ को नहीं बेले छोट पुओ मैंने बापा को रोल मॉडल भाव में नहीं था तेणु पुअर रोल मॉडल होती बापा एवं झीर रोल मॉडल होती माँ तेणु उभय को से रोल मॉडल भाव ग्रहण करते अनेक उपाय निजर शिक्षक को अनुकरण करने को चेष्टा करते शिक्षक अनेक प्रभाव रही जो शिशुटे शिक्षा ग्रहण करने को विद्यालय को जाए से समय से शिक्षक को अनुकरण कर आचार व्यवहार चाली चलनी शिक्षा तार स्टाइल सबको से अनुकरण करे से उठाई अनेक कौशल को नकल कर नुआ नुआ कौशल शिक्षा लाभ करे केवल पिला नुहे बड़ मैंने अनेक समय अन्य मानक अनुकरण करता साधारणतः आम जाचे जे छोट पिला जो अनुकरण करते नुहे प्रत्येक व्यक्ति अनुकरण प्रिय आम बड़ मैंने अनेक समय विभिन्न कथा आमर सांगसाथी और अन्य गुरुजन मान कि अनुकरण कर जो मान आत्मविश्वास नए उदाहरण स्वरूप से आत्मविश्वासी लोक खोजी देखा मिलता है जार जो व्यक्ति जो पिलाटी तार सेल्फ कॉन्फिडेंस न था आत्मविश्वास न था सी आउ गोटे लोक खोजुता है जहाँ पाखे आत्मविश्वास अच्छी से लोकटी से अनुकरण करे थे से अनुकरण कर सारापर निज भितर आत्मविश्वास भाव जागृत हुए से अनुकरण माध्यम आत्मविश्वास हुए आत्मविश्वासी हवा फल से नुआ नुआ कथा शिक्षा तेणु अनुकरण शिक्षार एक उत्कृष्ट माध्यम विवेचना कर परवर्ती पर्यायर पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन पिला माने पाठ पढ़ा समय अन्य एक माध्यम हूँ निरीक्षण पाठ पढ़ा समय आम निरीक्षण करूँ खाली अनुकरण करूँ ता नुहे अनेक जिन को आम निरीक्षण कर विद्यालय शिक्षक माने लैबोरेटरी अनेक परीक्षा और प्रदर्शन करते पिला माने अति निकटर देखते और शिखती लैबोरेटरी जो विभिन्न प्रकार परीक्षा निरीक्षा चली था एक्सपेरिमेंट चली था जेकोसी प्रदर्शन चली था से समय पिला माने अति निकटर प्रत्येक जिन को देखी था से किसी नुआ नुआ शिक्षा लाभ ज्ञान शिक्षा लाभ करते आवश्यक स्थले से जो बुझी न पड़ा जिनिस गुड़ाक शिक्षक को पचारि से बुझी था समस्या को से समाधान कर सक्षम होता है सेहीपरि जो पिला माने चाहती सिंपाजी मान सामाजिक आचरण अध्ययन करने जो जंगल में मिलते सेठा चाहते धरने जो जड़े सिंपाजी सामाजिक आचरण विषय जड़े अध्ययन कर रिसर्च कर जंगल को जीव जो सिंपाजी रोचे से जीव तार आचरण को से परीक्षा निरीक्षा कर तेणु परीक्षा निरीक्षा करने आमको लैबोरेटरी जावाक पड़ो जेकोसी जगह को जावाक पड़ो जो आम जहाँ विषय परीक्षा निरीक्षा करवा आम जो देखिपर से खेलवा समय से निरीक्षण करती आचरण विवरणी दिखती तेणु निरीक्षण शिक्षण एक साधारण उपाय निरीक्षण माध्यम आम कि नुआ नुआ कथा शिक्षा लाभ कर परवर्ती पर्यायर शुणा माध्यम शिक्षण लर्निंग थ्रो लिसनिंग जदि आप आज श्रेणी गृह को देखिए तेज आप देखिपारे जे छात्र छात्री मैंने जो ज्ञान और दक्षता लाभ कर शुणा द्वारा ही संभव हो शिक्षक लेक्चर मेथड जो से शिक्षादान करती श्रेणी गृह शिक्षक शिक्षादान करती छात्र छात्री मैंने नीरव शुणती शिक्षक कौन कहते कौ विषय अवधारणा कर छात्र छात्री मैंने अति जत्न सहकार शुणी था तेणु शिक्षक कथबार्ता हो माध्यम जहाँ माध्यम से साधारणतः शिक्षा कथबार्ता माध्यम शिक्षक शिक्षा प्रदान करते छात्र छात्री मैंने कथा शुणा सह पाठ पढ़ती बुझती से रेडियो एवं अन्य मीडिया अच्छी जहाँ माध्यम से शुणी था शुणा सक्षम होता है तो अधिकांश पिला जहाँ करती पर्यवेक्षण और शुणा माध्यम शिक्षा लाभ करते पर्यवेक्षण माध्यम से शिखती एवं लिसनिंग माध्यम श्रवण माध्यम से किसी नुआ नुआ कथा शिक्षा लाभ करते
तापरे आमे आसीबा जे लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर परीक्षा एवं त्रुटि शिक्षा लाभ करबा आमे ट्रायल माध्यम रे एवं एरर माध्यम रे आमे ट्रायल करबा एवं भूल भी हबो त्रुटि हबो से माध्यम रे आमे शिक्षा लाभ करथो जेतेबेले जने व्यक्ति कोनोसी परिस्थितिर सम्मुखीन होबे यदि से निश्चित नुहे जे यार समाधान किपर हो पारिबो से समस्त संभाव्य उपाय खोजा पे चेष्टा करे समस्यार समाधान करि पारंती कारण जदि समस्यार से सम्मुखीन होला प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से फेस कला तेबे से चिंता करिवो जे यार समाधान किपर हो पारिबो कारण समस्यार समाधान उपाय ताकू जणा नाही तेणु से समस्यार समाधान किपर हेबो से विभिन्न उपाय खोजिबो एवं सेगुड़िक समस्यार समाधान तापर से विभिन्न विकल्प माध्यम विकल्प गुड़ी जांच कर विकल्प माध्यम जो विकल्पटी सबुठार ग्रहणीय एवं जो विकल्पटी सबुठार उपयुक्त से विकल्प माध्यम से तार समस्या समाधान से विकल्प को से चयन कर समस्यार समाधान तेणु ट्रायल एंड एरर माध्यम आम थर्नाइंग जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी अच्छी ता माध्यम आम अनेक समय शिक्षा लाभ भूल हुए एवं भूल आम शिक्षा लाभ कर लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन परीक्षण द्वारा आम शिक्षण होता है शिक्षण संभव होता है तेणु परीक्षामूलक भाव बाहर को नेबा शिक्षार आउ एक उपाय तेणु जेकोसी प्रकार गोटे एक्सपेरिमेंट करने पिला बाहर को नौ आउटडोर को पिला जाती आउटिंग पिला करा जाए से विभिन्न प्रकार अनेक समय लैबोरेटरी परीक्षा निरीक्षा करा जाए और अनेक समय बाहर को आम पिला नौ जोटि से परीक्षा निरीक्षा करती से आप सन्देह था वास्तवता कौन सब अंतज्ञान एवं अनुमान कार्य उपर निर्भर करने बुद्धिमान नुहे आमर जी ज्ञान अच्छी ज्ञान एवं अनुमान या निर्भर करी आम कौन एक्सपेरिमेंट करवा ठीक हेनी अनेक समय भूल हो पाए तेना आमर अनुमान अनेक समय भूल हो पाए धरतु आपण मैंने शिक्षक आप भावुवे जे आपंकर शिक्षार्थी मैंने आपंकर शिक्षादान और मूल्यांकन पद्धति बहुत खुशी अच्छे जदि आम भाविबा जे आम जो शिक्षादान करुचे आम जो शिक्षा दौचे छात्र छात्री मानक से शिक्षा गोटे फलप्रद शिक्षा एवं ये शिक्षादान द्वारा पिलाने उपकृत होती मूल्यांकन पद्धति उत्तम मारण भाविबा से त्रुटि विच्युति रही पारे तेणु कौन समय आम अनुमान ज्ञान बा अंतर्ज्ञान को नहीं आम कौन निर्दिष्ट सिद्धांत पहुंची पार ना तो निर्दिष्ट सिद्धांत पहुंच गले आमको एक्सपेरिमेंट करिया पड़ो तार परीक्षा निरीक्षा करिया परीक्षा निरीक्षा कर सारापर से जहाँ निर्यास बाहर जो फल बाहर ताकू ही आमको ग्रहण कर लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन प्रतिफलन माध्यम शिक्षण थोड़े कौन कार्य करने यदि आप भावुवे जे आपण आशार स्तर पर्यंत नुहे तेज आप प्रतिफलन माध्यम या भल भाव करने शिखिपारे थोड़े आम गोटे कार्यटे संपादन कले से कार्य कर सारापर आम भाविबा जे से कार्यटी आमर आशानुरूप रेखा से कार्य आम आशानुरूप सफलता पाईपारूना पाईपारी ना तेणु से कौन करवा ना रिफ्लेक्शन माध्यम प्रतिफलन माध्यम आम यह आहरी कि अधिक भल कर अधिक कि स्पष्ट भाव में से कथा आम शिखिपार तेणु आप कार्य संबंध में किसी प्रश्न करेंगे जपरी कार्यर उद्देश्य कौन थी आम जो कार्य संपादन करें तार उद्देश्य प्रकृत में कौन थी उद्देश्य पूरण करने यथेष्ट थिला कि कौन भूल है कौन ठीक है ये प्रश्न गुड़ाक आमको प्रथम पचारे पड़ो निजे निजक आम प्रश्न करवा जे रिफ्लेक्शन माध्यम आम प्रश्न करवा आम जो कार्य करें आम जो सफलता पाइचे ये सफलता आमर उद्देश्य पूरण करी कि एवं ये उद्देश्य पूर्ण करने यथेष्ट थिला कि जदि नथिला तेबे एथरे कौन त्रुटि रहिला कौन भूल रहिला एवं आम तो किभली ठीक करि पारिबा ए प्रकार प्रश्न निजे निजको पचारि पड़ो शिक्षण माध्यम तापर लर्निंग स्टाइल आम बा शिक्षण शैली मध्य अनेक समय अच्छे आम कौ शैली रे आम शिक्षण करिथौ जे वर्तमान सुधा आम शिक्षार्थी माने केउ उपाय शिक्षा लाभ करुचे से विषय आलोचना आम कले कर सारे तेणु आवश्यक मन रखा उचित जदिव एमाने यही पद्धति व्यवहार करती बेले बेले प्रत्येक शिक्षार्थी निज पसंदर शैली थाए प्रत्येक शिक्षार्थी निजर गोटे लर्निंग स्टाइल अच्छी निज शैली से शिक्षण शिक्षा लाभ करे शिक्षा ग्रहण करें
ସେମାନେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣର କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିକିରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ବା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଭିଜୁଆଲ। ସେ ଦେଖିବ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ଅଡିଓଟାରୀ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସ୍ମୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନୂଆ କଥା ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଡିଓଟାରୀ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଆଉ ଏକ ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଶିଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାମ କରନ୍ତି, କାମ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାଇନେଷ୍ଟିକ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ସ୍ପର୍ଶକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ। କାଇନେଷ୍ଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ଗ। এই ତିନୋଟି ଲର୍ଣ୍ଣର, ତିନି ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥାଉ। ତିନି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁନିଆର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଲର୍ଣ୍ଣର, ସେମାନେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦୃଶ୍ୟ ଲର୍ଣ୍ଣର ବା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣର, ସେମାନେ ଦେଖିକିରି କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଜଣେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାର ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେପରିକି ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ମନୋଭାବ, ଏକାଗ୍ରତା, ପ୍ରେରଣା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଦକ୍ଷତା, ତାର ମନୋଭାବ, ତାର ଏକାଗ୍ରତା, ତାର ପ୍ରେରଣା, ତାର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ରେଡିନେସ୍ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି, ତେବେ ସେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ କାହା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଦକ୍ଷତା, ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ବା ବୋଧଗମ୍ୟତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା କଥା କହୁଛେ ସେ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା, ବୋଧଗମ୍ୟତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ବା କୌଶଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବା ଯଦି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଶିକ୍ଷଣ ଅନେକ ଭାବରେ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ମନୋଭାବ। ମନୋଭାବ ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆମର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅଛି ନା ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଅଛି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଅଛି ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ସଫଳ ହେବ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଅଛି ତେବେ ସେଠି ପାଠପଢ଼ା ବିଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯେ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ। ଯଦି ଶିଶୁର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମର ମନୋଭାବ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସଂକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂର କରି ଆମକୁ ବିଫଳତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଫଳତା ଆମେ ପାଇବାନି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଆମ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ରହିବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଅଛି ରହିବ ତେବେ ବିଫଳତା ଆପେ ଆପେ ଆମ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ
विपद नेबार इच्छा उपरे एक सकारात्मक विश्वास सृष्टि करिबारे साहाय्य करे। तेणु यदि आम सकारात्मक मनोभाव अच्छी आम आत्मविश्वास अच्छी संकल्प अच्छी उच्चाकांक्षा अच्छी ये समस्त जिनिस आम पाखे रहिले तेबे आमे सफलता निश्चित भाव में पाइबा। तेणु शिक्षा प्रति आमर मनोभाव एक गुरुत्वपूर्ण कारक जहाँ आम भल भाव में शिखा कि नहीं ता निर्णय करे। तेणु आम ठीक भाव में शिखा कि भूल भाव में शिखा कि शिखा कि आदौ शिखा ना ताहा आमर मनोभाव उपरे सकारात्मक मनोभाव रहिले आम निश्चित भाव में शिक्षा ग्रहण कर एकाग्रता जार इंग्राजी हूँ कनसंट्रेशन। तेणु एकाग्रता संबंध में शिक्षा पर आम ध्यान केन्द्रित कर कार्य सहित अटे। यह आमर इच्छा अनुसार चिंता कर क्षमता को बुझाए आमर चिंताधारा को नियंत्रण करे एवं से एक निर्दिष्ट शेष आड़ को नहीं जाए। जदि कनसंट्रेशन अच्छी आम एकाग्रता अच्छी तेज आम निश्चित भाव में आम गोल में पहुँची पार आम जो निर्दिष्ट लक्ष्य आम स्थिर करें से लक्ष्य आम पहुँची पार जेपर्यंत आम भल भाव में आयत्त कर से पर्यंत गोटे विषय आम मन रखा क्षमता सूचाई था। जो आम कौन वक्तृता शुणी था कि कौन पुस्तक पढ़ी था जदि आम ध्यान देना तार उपस्थापन कर जदि जेकोसी क्लासरूम हो जेकोसी वक्तृता हो जेकोसी पाठपढ़ा पुस्तक आम पढ़ुचे जदि आम कनसंट्रेशन ना एकाग्रता ना तेबे से आम कौन पढ़ुचे कौन शुणुचे एवं कौन जानूचे से विषय आम निर्दिष्ट भाव में कहीपर आम विफलता आम पाखे से पहुँचे। तेणु एकाग्रता शिक्षण एकांत जरूरी। तापर मोटिवेशन अभिप्रेरणा अभिव्यक्ति मनोभाव और एकाग्रता भली अभिप्रेरणा आउ एक गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ शिक्षादान बड़ धरण योगदान दे। अभिप्रेरणा जड़े व्यक्ति को कार्य करने को प्रेरित करे। यही प्रेरक शक्ति एक आवश्यकता कौन से कार्य संपादन इच्छा कि आवेग आम गोटे आपको इच्छा कहीपर गोटे आवेग तेणु अभिप्रेरणा हूँ गोटे प्रेरक शक्ति ये आमको अभिप्रेरित करुच्ची आमर आवश्यकता पूर्ण करने आम जेकोसी कार्य संपादन ये आमको प्रेरित करुच्ची अभिप्रेरित करुच्ची। परवर्ती पर्याय पुणी आलोचना करवा इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता लोक मैंने किभली तथ्य संग्रह कर समस्या समाधान व्यवहार करेंगे एवं उपयुक्त आचरण करेंगे ता सहित इंटेलिजेंस संपर्क अच्छी। तेणु आम कह इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता संपर्क आम समस्या समाधान अच्छी एवं आम किभली आचरण प्रदर्शन करवा से इंटेलिजेंस भूमिका रही। तेणु बुद्धिमान थिबा व्यक्ति माने विश्लेषणात्मक और सृजनशील भाव चिंता करने क्षमता रखिता। जो माने सृजनशील से माने बुद्धिमान एवं जो माने सृजनशील बुद्धिमान से माने विश्लेषणात्मक एनालिटिकल माइंड अच्छी एवं से माने क्रिएटिव नुआ नुआ कथा से माने सृष्टि करिबारे पारंगम होता। तापर रेडीनेस टू लर्न जे शिक्षण निमित्त प्रस्तुत रहिबो परिपक्वता एवं शिक्षण निबिड़ संपर्क रही। शिक्षा पाई उपाय आवश्यक निर्दिष्ट स्तर परिपक्वता जरूरी। परिपक्वता निहाती आमर जरूरी दक्षता सह शिक्षा लाभ कर आवश्यकता अच्छी। निश्चित परिपक्वता को स्तर को भल भाव में आमको ग्रहण करने पिला माने आवश्यक मात्रा प्रस्तुत रहा उचित। जदि प्रस्तुत पूर्व पिला शिक्षण को जोर जबरदस्त लदी दि जाए तेरे पाठपढ़ा समय और शक्तिर अपचय हो। तेणु रेडीनेस टू लर्न जो आम थर्नाइक जो नियम अच्छी जो लॉ अच्छी लॉ ऑफ रेडीनेस जदि आम से विषय आलोचना करवा तेज पिला प्रस्तुत रही आवश्यकता अच्छी। शिक्षा ग्रहण करने अति मात्रा से प्रस्तुत रहा दरकार। जदि प्रस्तुत नहांती आम शिक्षा देले कौन शिक्षण को जोर जबरदस्त लदी तेरे आम कहवा जे एटी समय और शक्तिर अपचय है। तेणु प्रस्तुति शिक्षण प्रस्तुति एकांत जरूरी। तापर आम कहवा जे टाइप्स ऑफ लर्निंग केते प्रकार शिक्षण प्रकार भेद सब कौन। ग्याग्ने जड़े विशिष्ट मनस्तत्वविद से मनुष्यर शिक्षण को 8टा श्रेणी व्यक्त कर मतरे कंडीशनिंग बा सिग्नल लर्निंग शिक्षादान सबुठार सरल माध्यम यह अनुकरण प्रोत्साहन द्वारा प्रतिक्रिया शिक्षा गागने एपरी विभिन्न प्रकार व्यवस्था करते सबुठार सरल सबुठार जटिल शिक्षा जहाँ संभव होता है। तेणु समस्या समाधान मानव शिक्षा व्यवस्था यह क्रमोर्दिष्ट पद्धति निरा।
तेणु सबुठारु आमे कहूँ जे सिग्नल लर्निंग ठारू आरंभ करी प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान पर्यंत जो 8टी पर्याय अछि ये 8टी पर्याय रे आमे साधारणतः शिक्षण ग्रहण करथबा शिक्षा संपादन करथौ तो आमे समस्त के पई उपयोगी विशेषकर जो माने शिक्षादान छात्र से अत्यंत उपयोगी तेणु आम प्रत्येक को बर्तमान संक्षेप में आलोचना करवा जे सिग्नल लर्निंग जहाँ आमको संकेत शिक्षा रूस फिजियोलॉजिस्ट पैवलोव गोटे भोकिला कुकुर उपर परीक्षा निरीक्षा करते एवं से माध्यम गोटे लर्निंग को से विकसित करते कहते सिग्नल लर्निंग जहाँ साधारण क्लासिकल कंडीशन कहुए घंटा बाजिबा परे कुकुर खाइबा दि जाउथला घंटा बाजिबा परे खाइबा देवा भली ए प्रक्रिया अनेक थर चलिला या पर जेतेबेले घंटी बाजिला जदियो किछि खाइबा को जागला नाही तथापि कुकुर पेट लाळ निर्गत हेबा देखबा मिलला ए निरपेक्ष उद्दीपक संयोग माध्यम रे लाळ बाहर करिवार ए प्रक्रिया को कंडीशनिंग कहा जाय अन्य अर्थ रे क्लासिकल कंडीशनिंग होछि संबंधित शिक्षण एक प्रकार जोथिरे एक निरपेक्ष उद्दीपक एक अर्थपूर्ण उद्दीपक सहित जड़ित निरपेक्ष उद्दीपक और अर्थपूर्ण उद्दीपक सहित जड़ित हेले जो प्रतिक्रिया हासिल करा जाए करिवार सक्षम होता है तेणु ताको आम कहूँ सिग्नल लर्निंग बा कंडीशन लर्निंग बोले कही संकेत शिक्षा परवर्ती पर्यायर उद्दीपक प्रतिक्रिया शिक्षण स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग शिक्षण उपाय उत्पत्ति एक बिली उपरे परीक्षा करा गोटे पजल बॉक्स माध्यम बक्स भितर एक भोकिला बिराड़ी को एवं बक्स बाहर किसी खाद्य रखा जाइथिला भल पाइबा बिलाई को बक्स भितर एक लिभर को हेरफेर करने को कहा जाइथिला बीएफ स्किनर यही प्रकार शिक्षण को व्यवहार करी विभिन्न परीक्षा निरीक्षा करी यह एपेरेंट कंडीशन नाम रे परिचित करी मनुष्यर शिक्षण पे उपयुक्त बोली विवेचना करथिले ऑपरेंट शब्द अर्थ जड़े व्यक्ति द्वारा निर्गमन स्वेच्छाकृत आचरण को बुझाए उद्दीपक प्रतिक्रिया ध्रुवीकरण ऑपरेंट कंडीशनिंग एक प्रकार शिक्षा जो स्वेच्छाकृत आचरण परिमाण द्वारा शक्तिशाली होता है चेन लर्निंग श्रृंखल शिक्षण में दुई कि अधिक उद्दीपक प्रतिक्रिया एवं संयोग को एकाठी जोड़ा जाए ये संयोग शब्द द्वारा मोटर कार्यकलाप हो पारे पुओ झील बापा माँ शब्द श्रृंखलार उदाहरण जेपरी चाबी लगाई कबाट खोलिबा जो फेसिंग भली अनेक मोटर एक्टिवेटर रही है ताला चाबी को डाण पार्श्व अपर धरी चाबी खोलिया भितर भर्ती करी मुड़ी देउछि चाबी इत्यादि मोटर स्टेरिंग उदाहरण तापर होछि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग यही प्रकार शिक्षा रे पिला गोटे वस्तु और तार नाम को जोड़िबा शिक्षा लाभ करिଥାଏ पिलाटी बॉल धरी खेलुथिबारु माँ बॉल कहूछि अनेक थर तार कथा शुणा पर शिशुटी से वस्तु को बॉल और तार नाम को जोड़िबा शिक्षा लाभ करिଥାଏ तेणु या आम कहूँ जे वर्बल एसोसिएशन मौखिक भाव में शिक्षण संभव होता है तापर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग भेदभाव शिक्षा ए प्रकार शिक्षण समान किंतु समान उद्दीपना भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया करिवार क्षमता सहित संबंध होता है पिला माने खाद्य को अन्य प्रकार बोतल अलग अलग करने सक्षम हेले से भेदभाव करने शिक्षा लाभ करते भेदभाव अर्थ हो वस्तु को विश्लेषणात्मक दृष्टि देखा क्षमता से किभली भाव में गोटे वस्तु को से डिस्क्रिमिनेट कर विश्लेषण करा तार जानिबार प्रक्रिया तापर परवर्ती पर्याय होची कॉन्सेप्ट लर्निंग जहाँ आमको धारणा शिक्षा जितेबाला आम अगणित वस्तु घटना एवं आम चारिपाखे थिबा लोक मानक सहित कारबार करूँ से आमको प्रथम निर्दिष्ट वस्तु गुड़ी को धारणा बा ज्ञानात्मक श्रेणी में संगठित कर जिनिस गुड़ सरल करने को जहाँ धारणा कहुए प्रत्येक विषय शिशु धारणा कर आम चतुर्पार्श्व जो जो जिन गुड़ा आम देखुचे से प्रत्येक जिनिस से गोटे धारणा सृष्टि कर नियम शिक्षा रूल लर्निंग नियम शिक्षा अन्य नाम हूँ नीति शिक्षा जीवन को सहज करने आमको बहु संख्यार नीति नियम एवं सूत्र उपर नियंत्रण रखार आवश्यकता रही उदाहरण स्वरूप भाषा शिखा क्षेत्र में नियमावली शिखा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जदि नियम आमको अन्य सब वर्ग में शब्द को अलग करने सक्षम करपरी फर्मूला शिक्षा द्वारा आमको गणित विज्ञान अन्य विषय शिखा साहाय्य करें तेणु जेकोसी शिक्षण निर्दिष्ट नियम अच्छी से नियम माध्यम आमको शिक्षा लाभ करने
तापरे सबुठारु शेष होची जे प्रॉब्लम सॉल्विंग जाको समस्या समाधान समस्या शब्द कौन से परिस्थिति को बुझाए जहाँ आमको कष्टकर मन होता है ओवरटेक समस्या समाधान पाई समाधान बाट बाहर करने दरकार समस्या समाधान यह विश्लेषणात्मक भाव में अनुधान करा उचित एवं यही समाधान करने चिंता करने आवश्यकता अच्छी और तालिकाभुक्त कर आवश्यकता अच्छी सबुठार भल हे जदि चयन करने और कार्य करने खोजापी मूल्यांकन कर आवश्यकता अच्छी समाधान बाट बाहर कि ना समस्या समाधान कि प्रकार विचार विमर्श से विषय में आमको अनुधान करने पड़े मुख्यतः शिक्षा लाभर सबुठार जटिल उपाय यह हूँ कारण ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड समस्या समाधान समस्त विषय को आम किभली भाव में प्रत्येक समस्या को समाधान कर समस्या समाधान उपाय आमको बाहर करने तेणु उच्चक्रम दक्षता जपरी विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन यही पद्धति माध्यम आम समस्या समाधान कर समस्या को आम विश्लेषण करवा संश्लेषण करवा एनालाइज करवा परवर्ती पर्याय मूल्यांकन करवा तेणु आम वर्तमान प्रथम यूनिट सारे एवं परवर्ती पर्याय आम जा टीचर एंड टीचिंग शिक्षक एवं शिक्षादान यूनिट 6 विषय वस्तु हूँ टीचर एंड टीचिंग शिक्षक एवं शिक्षादान जो शिक्षार्थी मैंने विद्यालय आसती जदिव से सामाजिकरण माध्यम अनेक जिन शिखी था विद्यालय और महाविद्यालय भाई अनुष्ठान संगठन गुड़िक बहुत किसी बाकी रही है यही संगठन गुड़ी शिक्षार्थी मान समस्त आवश्यकता ज्ञान दक्षता और मनोभाव सचेत कर दायित्व दि जाए छात्र जो विद्यालय को आसे तार सोशलाइजेशन प्रोसेस किसी मात्रा परिवार रे आरंभ हो जाए किंतु समस्त ज्ञान से आहरण कर न था किसी ज्ञान विद्यालय और महाविद्यालय अधूरा रही जाए विद्यालय और महाविद्यालय मान से सब ज्ञान छात्र छात्री मान दि जाए यही संगठन गुड़ी शिक्षार्थी मान समस्त आवश्यकता ज्ञान दक्षता और मनोभाव को सज्जित कर दायित्व दि जाए यह मुख्यतः शिक्षक मान द्वारा शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया जिते प्रकार नुआ नुआ ज्ञान दि जाए ये ज्ञान शिक्षादान माध्यम शिक्षक छात्र छात्री मान प्रदान करता शिक्षादान अनेक निर्दिष्ट परिस्थिति विषय से सुसंगठित ज्ञान समृद्ध भंडार रही है पचार पढ़ाऊ विषय से छात्र छात्री साधारण शिक्षादान विषय ज्ञान सामिल रही कौशल शिक्षादान निर्दिष्ट उपाय शिक्षादान व्यवस्था पाठ्यक्रम विषय और शिक्षादान लक्ष्य ये प्रत्येक जिनिस शिक्षादान माध्यम संभव होता है तेणु ये प्रत्येक दिग को आमको दृष्टि देवाक पड़ो तेणु शिक्षार्थी भाव में आपण जाना उचित जे शिक्षक किए आपण जदि शिक्षा विज्ञान छात्र तेज आपको प्रथम जाना पड़ो जे शिक्षक किए क्यों वैशिष्ट शिक्षक मान अन्य वृत्तिधारी मन दूरे रखी थाए से शिक्षक भाव में क्यों क्यों भूमिका निर्वाह करती या व्यतीत क्यों दक्षता और दक्षता सहित शिक्षादान और शिक्षादान किभली संपर्क रही तेणु जो जो विषय बर्तमान आम आलोचना कले शिक्षक किए शिक्षक वैशिष्ट कौन एवं यह अन्य वृत्तिधारी मान किपरि भिन्न एवं से शिक्षक भाव में कार्य से किभली निर्वाह करते क्यों क्यों दक्षता से दक्षता शिक्षादान करते शिक्षादान सहित यार संपर्क कौन ये प्रत्येक विषय को आम विस्तृत भाव में आलोचना कर तेणु हु इज ए टीचर शिक्षक किए शिक्षक मैंने होती से व्यक्ति विशेष जो मैंने शिक्षादान और शिक्षण में समस्या को बुझापी ज्ञान विस्तृत प्रणाली रखती से होती एपरी विशेषज्ञ जो मैंने शिक्षादान और शिक्षण विभिन्न ज्ञान आधार पर नियंत्रण रखी था यही ज्ञान को निजर श्रेणीगृह निर्देशर विज्ञान और कला को मार्गदर्शन करने व्यवहार करता तेणु शिक्षक को आम ज्ञान भंडार बोली आम साधारणतः अभिहित करूँ तेणु शिक्षादान और शिक्षण समस्या को से बुझी था विस्तृत भाव में शिक्षादान शिक्षण विभिन्न ज्ञान आधार थाए से नियंत्रण रखी था से ज्ञान को श्रेणीगृह से छात्र छात्री मान प्रदान करता से जो स्तर शिक्षादान करती निर्भर कर जो विषय श्रृंखल शिक्षादान करती से आवश्यक विषय वस्तु मास्टरशिप थाए मास्टरी थाए पारंगमता थाए
जो विषय से शिक्षादान करेंगे श्रेणी गुरे से विषय कंटेंट नॉलेज थाए से विषयगत ज्ञान खूब दक्षता थाए या व्यतीत से जड़ित सैद्धांतिक और व्यावहारिक दिग विषय आवश्यक सचेतन थाए से डिसीजन मेकिंग पाखे थाए व्यावहारिक दिग प्रैक्टिकल नॉलेज निकट थाए शिक्षक माने केवल योजना कर शिक्षादान करती ना बर से शिक्षार्थी मान प्रदर्शन मूल्यांकन करने से शिक्षादान में उन्नति आने आवश्यक प्रतिकारमूलक पदक्षेप ग्रहण कर केवल शिक्षादान करती ता नुहे शिक्षार्थी प्रदर्शन केमी भल हम से मूल्यांकन करती मूल्यांकन जब कौन त्रुटि विच्युति देखा जाए तेरे से तार प्रतिकार करती इस व्यतीत आदर्श शिक्षक मैंने सर्वदा निजर ज्ञान और दक्षता को अपडेट करने प्रयास करते नॉलेज अपग्रेडेशन ज्ञान भंडार को निजर ज्ञान भंडार को से बढ़ई था कारण शिक्षक प्रथम इज ए लर्नर देन इज प्रथम शिक्षक जन शिक्षार्थी तापर से शिक्षक विषयगत ज्ञान जदि दक्षता ना विषयगत ज्ञान उपर मास्टर ना तेज सी उत्तम भाव में शिक्षादान करें तेणु से शिक्षक को नॉलेज अपग्रेडेशन करने पड़ो अपडेट हे दक्षतार अपग्रेडेशन कर सब परिवर्तित समय आवश्यकता सहित ताल दी चलिए चेंजिंग नीड जहाँ अच्छी समाजर जो परिवर्तित अवस्था परिवर्तित व्यवस्था सहित से चाहिए जो शैक्षिक परिवर्तन आसूची नीति परिवर्तन आसूची चिंताधारा परिवर्तन आसूची प्रणाली परिवर्तन आसूची मूल्यांकन जो परिवर्तन आसूची से प्रत्येक दिग उपर शिक्षक निजे निजक पारंगम करेंगे से पाठपढ़ा एक जीवनव्यापी प्रक्रिया जहाँ पूर्व कही टीचर हूँ गोटे कन्स्टांट लर्नर से जीवनव्यापी शिक्षा लाभ कर से गोटे लर्नर तापर से जड़े शिक्षक से केवल निजर ज्ञान को अपडेट करती ना बर दैनिक आधार में निजर उपदेशात्मक सचेतनता वृद्धि करने प्रयास करती से आत्मसमीक्षा करने निजर त्रुटि विच्युति को खोजी बाहर करती सहकर्मी मान शिक्षा देवार लक्ष्य करती उपदेश को उन्नत कर विषय गुड़िक उठाई नि परिप्रेक्षी जो आदर्श शिक्षक होती व्यक्ति जी निजर छात्र छात्री मान सर्वोत्तम ढंग से गढ़ी तोड़े ज्ञान रखी था तेणु गोटे भल शिक्षक रदि आम कह से शिक्षक होती किए ना छात्र छात्री मान एक उन्नत मानर छात्र रूपे सृष्टि करवा एक आदर्श छात्र सृष्टि करने जो जो कौशल आवश्यकता रहा कथा जब से रही पाखे यदि से प्रकार ज्ञान से प्रकार दक्षता अच्छी तेज आम कह ये निश्चित भाव में से जड़े आदर्श शिक्षक तेणु शिक्षक केते गोटे वैशिष्ट्य अच्छी जहाँ आम कहूँ कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स जड़े शिक्षक कर्तव्य हूँ छात्र छात्री मान बौद्धिक सामाजिक शारीरिक भावगत और नैतिक विकास में साहाय्य जहाद्वारा से सर्वांगीन विकास प्रथम कही छात्र छात्री मान सर्वांगीन विकास करवा हूँ शिक्षक गुरु दायित्व से जहाँ जहाँ करणीय ता शिक्षक निजे करेंगे सी कर्तव्य विषय वस्तु दक्षता और शिक्षक शिक्षकों जो विषय शिक्षा देवाक जाऊँच तार गभीर ज्ञान जो आदर्श शिक्षक एक गुरुत्वपूर्ण कंटेंट नॉलेज रो विषय से शिक्षादान करेंगे से विषय गभीर अध्यवसाय अधिक ज्ञान परवर्ती पर्याय पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी मान शिक्षा प्रस्तुत विषय वस्तु और कार्यकलाप समुदाय तालिका जाए सुविधा ये मोट तालिका को विज्ञान गणित आदि विषय भाग कर तेणु विषय वस्तु अनुसार प्रस्तुत होता तालिका को सिलेबस कहुए पाठ्यक्रम भली ए बछा बछा एवं संगठित विषय वस्तु लक्ष्य और उद्देश्य पाठ्यक्रम कारबार कौशल पद्धति और मूल्यांकन परामर्श रही पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम में कहुई जड़े आदर्श शिक्षार्थी कौन शिखा उचित यही ज्ञान शिक्षक मानू यही नियम को कड़ाकड़ी भाव में पालन कर तो पाठ्यक्रम ट्रांजाक्शन कि हम पाठ्यक्रम को कि भाव में छात्र छात्री मान पाखे पहुंचे पार से दायित्व गुरु दायित्व हूँ शिक्षक तेणु विषय वस्तु ज्ञान सहित पाठ्यक्रम जहाँ जहाँ सब विषय अच्छी से विषय गभीर ज्ञान रहा आवश्यक जड़े आदर्श शिक्षक अन्य एक विशेषता हूँ शिक्षा शास्त्र संपर्क ज्ञान यह शिक्षादान को एक वृत्तिगत अभ्यास एवं एकाडेमिक अध्ययन क्षेत्र भाव में ग्रहण करता है शिक्षा शास्त्र केवल शिक्षादान कि दक्षतार व्यावहारिक प्रयोग सहित जड़ित नुहे बर पाठ्यक्रम प्रसंग एवं शिक्षादान किपरि होता है
इत्यादि संबंधी सिद्धांतर शरीर सहित जड़ित एथिरे वक्तृता एवं प्रदर्शन शिक्षार्थी केन्द्रिक पद्धति जेपरिक प्रकल्प असाइनमेंट क्रमवर्धिष्ट शिक्षण सामग्री एवं गोष्ठी केन्द्रिक पद्धति जेपरिक आलोचना सेमिनार भूमिका इत्यादि विषय आलोचना कर तो प्रत्येक ये समस्त विषय शिक्षक तांकर ज्ञान रहिबो कारण से तांकर शिक्षा शास्त्र उपर मध्ये तांकर अगाध ज्ञान रहिबो जे साइकोलॉजी कोन शिशुर मनस्तत्व एवं को शिक्षादान पद्धति से अवलंबन करेंगे नुआ नुआ पद्धति कौन सब आसी पहुँचुची एवं टीचिंग स्किल लर्निंग स्किल प्रत्येक विषय तांकर ज्ञान रही तेणु प्रत्येक प्रभावशाली शिक्षक आंतव्यक्तिगत और आंतव्यक्तिगत ज्ञानर आवश्यकता रही पारस्परिक ज्ञान सक्षम तेणु आंतव्यक्तिगत निजर व्यक्तिगत ज्ञान एवं अंतव्यक्तिगत ज्ञान अंतव्यक्तिगत एवं अंत व्यक्तिगत ज्ञान आवश्यकता रही ये ज्ञान शिक्षक को अधिक प्रभावशाली कर निजर छात्र छात्री शिक्षानुष्ठान पितामाता एवं आखपाखर जो समुदाय लोक मान सहित उत्तम संपर्क बजाय रखा हूँ शिक्षक दायित्व तापर आम कह शिक्षादान कौशल सब कौन टीचिंग स्किल सब कौन टीचिंग स्किल हूँ जे पूर्व सूचनार कौशल शिक्षादान विषय वस्तु चयन एवं तार्किक व्यवस्था विषय वस्तु को आम उपयुक्त चयन करवा एवं तार गोटे लॉजिकल सिस्टम आम आनिबा तेणु निर्देशनात्मक उद्देश्य उपयुक्त शिक्षादान उपकरण चयन कर तेणु ये पूर्व सूचना कौशल शिक्षादान पूर्व आमको ये विषय विवेचना करें शिक्षागत दक्षता पाठर परिचय देवार दक्षता जो विषय शिक्षादान देखो से विषय परिचय देवा पड़ो तार व्याख्या एवं दृष्टांतिकरण करा सुदृढ़ीकरण दक्षता व्यवहार को मजबूत करने एवं परिमाणर उपयोगिता करा पचरा उचरा एवं अनुसंधान कर दक्षता नीरवता व्यवहार कर दक्षता बंद कर दक्षता ये समस्त शैक्षिक दक्षता व शिक्षागत दक्षता शिक्षकर शिक्षादान कौशल अंतर्भुक्त तो पोस्ट इंटेलेक्चुअल स्किल जो मूल्यांकन पूर्व निर्धारित उद्देश्य पूर्ण हो परीक्षा करने को पड़ो मूल्यांकन समय पूर्व आम जो लक्ष्य निर्धारण करें से लक्ष्य को आम हासिल करें कि तार प्रतिकार आमको योजना करा पड़ो एवं होम असाइनमेंट घर कम आम छात्र छात्री मान देव यापर आमको देखा पड़ो रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग शिक्षादान एवं शिक्षण मध्य संपर्क रही शिक्षक मैंने जो भाव में शिक्षादान करती मुख्यतः छात्र छात्री मैंने शिखती कि ना स्थिर कराए सफल शिक्षक मैंने जानती शिक्षार्थी मैंने जहाँ शिक्षा दिखती से ध्यान दिखती जिते अनुभव करती शिक्षक मैंने जहाँ शिक्षा दिखती तार प्रासंगिक एवं आकर्षणीय अच्छी टीचिंग जदि तार कंटेक्चुअल अच्छी तार जब आकर्षणीय अच्छी तेज निश्चित भाव में छात्र छात्री मैंने शिक्षा ग्रहण करेंगे तेणु विपरीत जिते शिक्षार्थी मैंने अनुभव करती जहाँ शिक्षा दिखती अप्रासंगिक से प्रति ध्यान दिखती ना तापर हूँ रिफ्लेक्टिव टीचिंग जे रिफ्लेक्टिव शिक्षादान इंग्रेजी भाषा रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहुए यह एक शिक्षादान पद्धति जो शिक्षक मैंने शिक्षार्थी मानक रिफ्लेक्टिव साहाय्य जिनस गुड़ी भल भाव में शिखापी साहय करता प्रतिफलन अर्थ हो थे जड़े निजर अनुभव को पुनः सृष्टि करने एवं यह सुधार दृष्टि रोमंथन कर प्रक्रिया रिफ्लेक्टिव माध्यम से कौन कर प्रतिफलन माध्यम निजर अनुभव को से पुणी आउ थे पुनराय सृष्टि करुच्ची रेक्टिफाई कर सुधर से तार क्रिया और प्रतिक्रिया प्रदान कर तेणु प्रतिफलन शिक्षार्थी मानक मानसिक भाव में निजर अभिज्ञता को स्मरण करने निजर प्रदर्शन विश्लेषण एवं तार मूल्यांकन करने से शिक्षा आहरण करने पर्याप्त सुजोग प्रदान कर तेणु यही मॉडल माध्यम आम जो कहे ए स्टैंड्स फॉर एक्शन ए स्टैंड फॉर लुक बैक ए हूँ अवेयरनेस सी हूँ क्रिएटिंग अल्टरनेटिव मेथड ऑफ एक्शन टी फॉर ट्रायल यही उपाय आम करवा कार्यानुष्ठान प्रशिक्षार्थी माने गोटे विषय चयन करी गोटे पाठर योजना करी शिक्षक निर्देश अनुसार पाठ पढ़ाई
तेणु आम पछक देखा थे पाठ शेष होगा शिक्षार्थी मैंने मानसिक भाव में पाठर प्रत्येक पदक्षेप को पुनर्बार सृष्टि करती प्रतिफलन कराए प्रतिफलन माध्यम आम बैक करूँ कौन जो विषय आम पढ़ीचे पुणी आउ थे आलोचना करूँ प्रतिच्छवि साहय करने किसी प्रश्न फ्रेम करपरिक परिचय थिला उपयुक्त यही शिक्षार्थी मानक पूर्व ज्ञान सहित विषय को लिंक कर साहय करता तेणु पछकू परवर्ती पर्यायर आवश्यक दिग प्रति आमको सतर्क रहा पड़ो यह प्रतिफलन स्वरूप शिक्षार्थी माने प्रदर्शन और सकारात्मक एवं नकारात्मक दिग विषय यथेष सचेतनता लाभ करते कार्यर विकल्प उपाय सृष्टि करते ट्रायल डाइवर्स रोल ऑफ द टीचर डाइवर्स रोल ऑफ द टीचर शिक्षक विविध कार्य जे युवपीढ़ी मानक जीवन पर प्रस्तुत करने शिक्षक कर्तव्य रही आम छात्र छात्री मानक भविष्य सृष्टि कर भविष्य छात्र छात्री मानक आम तैयारी कर तेणु शिक्षक अनेक गुड़े कार्य रही तेणु शिक्षक माने शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक शारीरिक नैतिक सामाजिक और भाव प्रवणतार जत्न नेवा आवश्यक ये प्रत्येक दिग प्रति तार बौद्धिक विकास के बढ़ तार शारीरिक विकास के बढ़ तार नैतिक विकास केमी हम तार सामाजिक विकास केमी हम तार भावनार विकास केमी हम ये प्रत्येक प्रति शिक्षक जत्रमान होगा आवश्यक शिक्षक मिजाज गुड़िक जिते गुरुत्वपूर्ण जे शिक्षार्थी शिक्षार शिक्षार्थी भाव में आपन को जानवा दरकार तेणु शिक्षक कौन कौन करेंगे शिक्षार छात्र हिसाब से शिक्षा विज्ञान छात्र हिसाब से ये सब आमको जानवा पड़ो से आमको केते गुड़े आलोचना करवा से शिक्षक सब भूमिका कौन अच्छी कौ रोल शिक्षक करेंगे शिक्षक कौन कौन सब करेंगे शिक्षादान समय आम तक बर्तमान प्लानिंग एंड मेकिंग डिसीजंस अबाउट द इंस्ट्रक्शन निर्देश विषय योजना एवं निष्पत्ति नेबा इंस्ट्रक्शन आमे ये जिते शिक्षक जिते विद्यालय शिक्षादान कर निर्देशना दौरान से समय प्लानिंग एवं मेकिंग डिसीजन प्लानिंग करने को पड़ो तार जो गोटे योजना रूपायन कर डिसीजन मेकिंग विद्यालय उन्नति योगदान विद्यालय उन्नति डिसीजन डिसीजन माध्यम से विद्यालय किभली उन्नति लाभ कर से विषय शिक्षक चिंता करेंगे बिल्डिंग ए प्रोडक्टिव लर्निंग क्लाइमेट एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स एक उत्पादनक्षम शिक्षा जलवायु निर्माण करने और छात्र छात्री मान प्रेरणा प्रदान करने गोटे लर्निंग क्लाइमेट टीचर मस्ट बी ए लर्नर फ्रेंडली टीचर जब रे तेज से लर्निंग क्लाइमेट तैयारी करेंगे ही कैन मोटिवेट द स्टूडेंट शिक्षार्थी मान अभिप्रेरित करवा हूँ शिक्षक गुरु दायित्व शिक्षक जदि छात्र छात्री मान उपस्थित भाव में अभिप्रेरित हेले तेज शिक्षादान सफल हम और शिक्षक द्वितीय काम हूँ जो लर्निंग क्लाइमेट तैयारी करेंगे छात्र छात्री मान शिक्षादान प्रति अभिप्रेरित करेंगे जहाँफल शिक्षादान प्रक्रिया सफल हो एवं तापर हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट श्रेणीगृह परिचालन श्रेणीगृह टीचर इज द लीडर ऑफ द क्लासरूम रे शिक्षक होउछन लीडर ही विल लीड द क्लास से लीडर हिसाब रे श्रेणीगृह रे समस्त कार्य को से परिचालन करेंगे जो शिक्षादान कर शिक्षादान सामग्री कि उपयुक्त विनियोग हो पार ये प्रत्येक कार्य शिक्षक उपयुक्त भाव में परिचालित करेंगे करिकुलम ट्रांजैक्शन हूँ सब बड़े गुरुत्वपूर्ण दिग जहाँ को नहीं शिक्षक पाठ्यक्रम को किभली छात्र छात्री मान निकट में पहुंची पारे करिकुलम ट्रांजैक्शन जे पाठ्यक्रम जहाँ जहाँ कार्यक्रम रही से प्रत्येक कार्यक्रम शिक्षक ठीक भाव में संगठित करेंगे देन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जी मूल्यांकन एवं मूल्यांकन एवं मूल्यांकन ये दुईटी जे आम जो शिक्षण जो उद्देश्य रही से शिक्षण उद्देश्य उपस्थित भाव में आम हासिल कि नहीं जानापी आमको परवर्ती पर्यायर शिक्षादान शेष भाग में आमको तार मूल्यांकन और मूल्यांकन करेंगे जहाँ तुम कहे आसेसमेंट
विभिन्न प्रकार आसेसमेंट अच्छी से प्रत्येक आसेसमेंट फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक ये विभिन्न प्रकार प्लेसमेंट विभिन्न प्रकार जो आसेसमेंट अच्छी से प्रत्येक आसेसमेंट शिक्षक संपादन करेंगे रोल ऑफ नेशन बिल्डिंग परिशेष शिक्षक राष्ट्र निर्माण में भूमिका अच्छी कहीं ना टीचर कैन मेक द नेशन एंड टीचर कैन ब्रेक द नेशन गोटे प्रोवर्ब रही तेणु शिक्षक जो चाहिए राष्ट्र विकास रे एक सक्रिय भूमिका ग्रहण करेंगे तेणु से आम परिशेष कहवा शिक्षक होती जड़े नेशन बिल्डर इज एन सोशल इंजीनियर तेणु राष्ट्र निर्माण में भूमिका विशेष गुरुत्वपूर्ण रही आज आम शिक्षादान को आम आज विराम देवा एवं समस्त को मु आशा करी मो शिक्षादान द्वारा आप उपकृत होते समस्त को धन्यवाद।